परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं Heavenly Father, we come into your presence. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the name of our Lord Jesus. तेरा वचन हमें सिखाता है कि अब हम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। Your word teaches us we can come boldly before the throne of grace. पिता, Father, तू सत्य की आत्मा से हमें चला। you lead us by the Spirit of truth. हर एक वो बात Everything प्रभु जो तुझको नहीं भाती, तू हमसे दूर कर। that does not please you, Lord, separate it from us. पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें Holy Spirit, help us कि हम एक पवित्र और तुझे भावता हुआ एक जीवन जी सकें। that we may live an honoring and pleasing life towards you. प्रभु, हमारे मन में उठने बैठने वाले विचार और हमारे शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। Lord, the thoughts that arise within us and our words may be acceptable before you. आज की इस मीटिंग में प्रभु तेरी आत्मा हमें सिखाए। In today's meeting, may your Spirit teach us. यीशु, Jesus, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर enlighten the eyes of our heart, Lord, कि हम उस महिमा से भरे हुए सुसमाचार के प्रकाशन को समझ सके। that we may be able to comprehend the glorious light of your gospel. प्रभु, हमें सुनने वाले कान और एक समझने वाला हृदय दे, Lord, give us ears that hear and a heart that understands. यीशु के नाम में। In Jesus' name. Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Amen. Blessed Good Friday service to you all. आप सभी को एक बहुत आशीषित गुड फ्राइडे सर्विस। Amen. I want to welcome each and every one of you. मैं आप में से हर एक का स्वागत करना चाहता हूँ। Our good friend Pastor Vabang is here with his family. We welcome you. हमारे अच्छे मित्र पास्टर बबांग यहाँ सह परिवार हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। Okay. अभी आप सब लोग, हम लोग उसके नाम को पुकार रहे थे। We were all calling out to his name just now. जिन भी लोगों के ऊपर प्रभु का नाम प्रकट हुआ, आपको उसकी वैल्यू शायद अभी समझ में ना आए। To each one to whom the name of the Lord has been revealed, maybe you don't understand the value of it now. मगर जब आप आखिरी सांसें ले रहे होंगे, But when you will be breathing your last, तब आपको इस उद्धार की असली में जो इसकी कीमत है वो आपको समझ आएगी। then you will understand the real worth of the salvation. सो आप धन्य हो जो यीशु का नाम आपके ऊपर प्रकट हुआ। So you are blessed that the name of Jesus has been revealed over you. इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, This has nothing to do with any क्योंकि religion. कई ऐसे क्रिश्चियन हैं, कई ऐसे ईसाई हैं जो ईसाई परिवार में पैदा हुए और उन्हें वो नाम नहीं प्रकट हुआ, और आप जो जगह जगह अलग अलग जगह थे, अलग अलग कुल थे, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जगह से प्रभु ने आपको बुलाया और अपना नाम आपके ऊपर प्रकट किया। Because there are many from religious Christian backgrounds, Christian families upon whom this name was not revealed, but to you all whom God chose and called and separated from different tribes and tongues and different places, and He called you in His name. कितने लोगों को याद है आखिरी संडे में हमने क्या सीखा था? How many of you remember what we learned last Sunday? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं The Lord Jesus is कि saying उसने वध होकर that Him being slain अपने लहू से by His blood हर एक जाति, from every tribe, हर एक कुल, every tongue, हर एक भाषा से from every people, लोगों को अपने लिए मोल लिया। He purchased people for Himself. Amen. Such a great privilege कितना महान सौभाग्य है that we were purchased, कि हम खरीदे गए हैं, we were bought हम मोल लिए गए हैं by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा। Amen. Amen. So यहाँ पृथ्वी पे So here on the earth, एक जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी एक लिस्ट निकलती है, फोर्ब्स। there's a list of the very wealthy people, Forbes list.
मेरा किसी का 100वां नंबर, किसी का 500 नंबर, Somebody's on the 100, उनकी somebody 50, पृथ्वी 100. पे जो संपत्ति है उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। Their earthly possession determines their ranking here. मगर अगर इस पूरे कॉस्मोस में, But if in the entire cosmos, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर असली में असली कीमत निकाली जाए तो सबसे अमीर लोग आप लोग हो और मैं हूं। but if in the entire cosmos we took out the real net worth, then it is you and I that is the richest. Amen. Because our worth is not temporary. क्योंकि हमारी कीमत थोड़े समय की नहीं है। हमारी जो कीमत परमेश्वर ने लगाई The worth that God set on us, वो अनंत तक वैसी ही रहेगी। it will be eternal forever. और जिस दिन आप इस सच को समझ गए तो आप समझ जाओगे मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूं इस दुनिया में। And the day you understand, you will know that you are the richest person on the earth. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें नाशवान सोने और चांदी से नहीं खरीदा। The word of God says God has not purchased us with gold and silver that is perishable. नाशवान सोना और चांदी, Perishable gold or आपने silver. देखा कभी ऊपर जाती है उसकी वैल्यू, कभी नीचे जाती है, You see, sometimes the price goes up, the price comes down. मगर यीशु के लहू की जो कीमत है But the worth of the blood of Jesus, कभी नीचे नहीं जाएगी। it will never go down. और आप उस लहू से खरीदे गए हो जो अविनाशी है, जो नाशवान नहीं है। And you have been purchased with that blood that is indestructible, imperishable. Amen. So अगर आप अपनी वैल्यू लगाना चाहते हो, If you want to determine your own value, don't measure your worth by the worldly standards. तो दुनिया के स्तर से अपना दाम लगाने की कोशिश मत करो। Measure your worth through the eyes of the Lord. अपनी कीमत प्रभु की नजरों से लगाओ। Amen. Amen. What a great privilege. कितना महान सौभाग्य हमारा। Amen. Amen. So आज हम थोड़ा वचन सीखेंगे, ठीक है? So we will learn the word today, थोड़ा सा little bit. मैं सोच रहा था आपको डीप मैं स्टडी में ले जाऊंगा, मगर आज समय नहीं है इतना, I was thinking I'll take you in deep और मैं study. कोशिश करूंगा इसको जल्दी खत्म कर दें क्योंकि मेट्रो से कई लोग घर जाते हैं। We'll try and wrap up sooner because many people go home by metro. ओके, सो ध्यान धरकर वचन सुनना है। So hear the word intently. अगर आपका एटीट्यूड, अगर आपका स्वभाव वचन के लिए सही है तो अपने आप जय आप देखोगे। If your attitude is right towards the word, you will automatically see victory in your life. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? Because faith comes by, सुनने से। Hearing. मगर कैसे सुनने से? but hearing how? कैजुअल सुनने से नहीं। Not by casually hearing. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। My son, hear my word intently. कैसे सुन? How? ध्यान धर कर सुन। Intently you hear the word. जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जैसा आपका स्वभाव उसके वचन के लिए है, वो ये दर्शाता है कितनी कीमत आप परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो। The way you hear God's word determines what kind of worth you place on God's word. और ये याद रखो कि आत्मिक जहां में सब कुछ खुला है, सब कुछ नग्न है, सब कुछ नंगा है, कुछ छुपा नहीं है। And understand that in the spirit world, everything is transparent, everything is naked, there is nothing hidden. मैं 10 गाने गा सकता हूँ, I love you Jesus. I can sing 10 songs, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मगर सब खुला है। but everything is open. आप ये नहीं कह सकते मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु का आदर करता हूँ, मगर मैं उसके वचन से प्यार नहीं करता और उसके वचन का आदर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 16वीं आयत में वचन देह धरकर आया और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। तो अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, अगर आप कहते हो मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम प्रकट होगा
आपका प्रेम जो उसके वचन के लिए उसमें। If you say you love Jesus, your love for Jesus is manifested in the way you love the Word of God. Amen? So कैसे सुनना है वचन? So how do you hear the Word? ध्यान धरकर। Intently. आप जानते हैं जो पायलट्स होते हैं, You know the pilots? मेरे कुछ दोस्त हैं जो पायलट्स हैं, I have some friends that are pilots. तो उनको वो हेडफोन्स नहीं लगा सकते बहुत तेज आवाज में। They cannot wear loud headphones. हम लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते, We can, but they cannot. क्योंकि जब आप लाउड हेडफोन लगाते हो तो आपकी जो हियरिंग है, आपकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। Because when you use loud headphones, your hearing capacity reduces. और कई बारी हमें लगता है जो पायलट्स हैं वो, आप जानते हैं ये जो फ्लाइट्स हैं इंडिगो, जो आप सारी फ्लाइट देखते हैं, दिस इज नॉन विजुअल फ्लाइंग, यानी वो देख कर नहीं उड़ाते, वो सुनकर उड़ाते हैं। So all the commercial pilots, when they fly लोग their समझे नहीं। flights, they don't see and fly, they hear and fly. जो ये पायलट्स आप देखते हो, ये जो जहाज उड़ाते हैं, ये देख आंखों से नहीं उड़ाते, The pilots don't see and fly. वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। They can't अरे do what they ऊपर want. आसमान खाली लिख रहा है, ऊपर ले जाता हूं मैं। Oh, I can see the sky is empty, let me नहीं, take up. No. वो उस आवाज को, उस शब्द को, उस वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं जो एक मैसेज उन्हें भेजा जाता है, और वो उसको ओबे करते हैं। वो कहते हैं 10,000 फीट में ले जाओ, 10,000 फीट में ले जाते हैं। They hear that voice carefully that gives them the instruction, go up to 10,000 feet, they go up to 10,000 feet. जिद नहीं करते, They don't say, वो नहीं कहते 10,000 फीट क्यों ले जाऊं, they don't say why 10,000? 20,000 क्यों नहीं ले जाऊं। Why not 20,000? अगर आत्मा में उड़ना है If you want to fly in the spirit, तो परमेश्वर की आवाज सुनना और उसकी आज्ञा मानना सीखना पड़ेगा। then you'll have to learn to hear and obey the voice of God. ओके? और टाइम टाइम पे उनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं। And time after time they receive instructions. It's not what they see with the natural eyes, it's what they hear. That is what makes them reach their destination. वो अपनी आंखों से क्या देखते हैं उससे नहीं, लेकिन अपने कानों से जो सुनते हैं उसकी वजह से वो मंजिल तक पहुंचते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि आपकी जय उसमें नहीं निर्भर जो आप आंखों से देखते हो, मगर आपकी जय उसमें निर्भर है जो आप कानों से उसका वचन जो ध्यान धरकर सुनते हो, वो वचन आपकी रक्षा करेगा, वो वचन आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, वो वचन आपको अंत तक लेकर जाएगा और आप अपनी दौड़ को पूरा करोगे। The day you understand that you do not fulfill this race by what you see with your eyes, but what you hear, the word that you hear will protect you, it will lead you till the end and you will fulfill your race. Amen. So पहला kindergarten teaching, इस बात को समझो, So the first kindergarten teaching है वचन को ध्यान धरकर सुनना। is to hear the word carefully and intently. क्योंकि आपके ये जो दो कान हैं, Because your 2 ears, ये आपकी आत्मिक गर्भ का प्रवेश का द्वार है। this is your spiritual womb entry point. क्योंकि यीशु ने क्या कहा, वचन क्या है? लूका 8:11 में लिखा है कि बीज परमेश्वर का वचन है, या वचन क्या है? बीज है। So Luke 8:11, Jesus said, the word is the seed. दृष्टांत यह है कि बीज तो क्या है? परमेश्वर का वचन है। Seed is the word of God. और जब आप ध्यान धरकर वचन को सुनते हो तो वो बीज आपके हृदय में चला जाता है। And when you hear that word intently, that seed goes into your heart. That यही word goes काम है into your बस। heart. That's what you have to do. उगाना आपका काम नहीं है, To make it grow is not your role. बीज अंदर चला जाए ये आपका काम है। The seed should go in. अगर That's your अंदर role. चला गया, उगाना परमेश्वर का काम है। If the seed goes in to make it grow, God's job. बस यहीं पे कई लोग कहते हैं प्रभु तू कब करेगा? प्रभु कहता है तू बीज को मेरे अंदर नहीं जाने देता। That's where many people are stuck. They're saying, God, when will you do it? And God is saying, you don't let my seed in you. आपका काम क्या है? What is your job? वचन को प्रवेश करने देना अपने हृदय के। Let the word enter your hearts. अगर वचन प्रवेश कर गया आपके हृदय में तो बढ़ता जाएगा, अपने आप फल आएगा। If the word enters your heart, it will keep growing and the fruit will come automatically. ओके? ये वचन नहीं था, ये इंट्रोडक्शन था। This कि is आप not the- वचन ध्यान से सुने। This is not the word, this is the ठीक है। introduction, so you hear carefully. मैं बार बार आपको ये रेपिटेशन में ये बताऊंगा कि ताकि आप समझ जाएं कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानें। I will say this again and again in repetition so that we don't despise the word of God. उसने अपने वचन में कहा, मैंने अपने वचन को भेजा
और तुझे मैंने बीमारियों से चंगा किया है। In His word, He has said, I have sent my word and healed you of your diseases. मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचा लिया है। I have sent my word and saved you from destructions. Amen? तो चलिए आज पूरी दुनिया में लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं। The whole world is celebrating Good Friday. कई खुश हैं, कई रो रहे हैं। Some are happy, some are crying. कई रीति रिवाज से मना रहे हैं, Some are celebrating by ritual, कई प्रकाशन से मना रहे हैं। some by revelation. Amen? Amen. मैंने आपको कहा था जो हम रीति रिवाज से करते हैं वो धर्म है। I told you, whatever we do by rituals is religion. हम प्रकाशन से चलने वाले लोग हैं। We are the people that live, that walk by revelation. ओके, सो पहला कुरिन्थियों 1:18। 1 Corinthians 1:18. पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. परमेश्वर की सामर्थ छुपी है क्रूस के संदेश में। The power of God is hidden in the message of the cross. और अगर आप इसको नहीं समझेंगे, And if you don't understand this, वो जो सामर्थ परमेश्वर की आपके लिए कार्य करना चाहती है वो सामर्थ कार्य नहीं कर सकती। the power of God that wants to work for you cannot work for you. मैंने आपको पहले भी बताया था, इतने सारे मसीह हैं जो पुराने नियम की कहानियों में हैं और वो ठीक है, मगर पुराने नियम की कहानी से उद्धार नहीं है। There are so many believers that are stuck in the old covenant stories, and that is okay, but there is no salvation in those stories. Gospel, सुसमाचार, in the gospel, सुसमाचार it's the में story of the cross, क्रूस की कथा है, and that is what saves us. और उसी से हम उद्धार पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को समझें कि ये क्रूस की कथा क्या है। So it is important that we understand this mystery. What is this story of the cross? आपने सुना होगा कई लोग जो बाहर से देखते हैं वो कहते हैं अरे इनका भगवान खुद को तो बचा नहीं सका क्रूस में, इनको क्या बचाए? सुना किसी ने? मुझे हाथ दिखाओ। You would have heard people say outside, oh, their God could not save himself from the cross. What will he save them? तो क्या बोलोगे आप उन्हें? What will you tell them? तो ये बोलेंगे हम उन्हें, This is what we will क्योंकि say. क्रूस की कथा For the नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। The message of the cross is foolishness to those that are perishing. They cannot wrap their mind around this, the message of cross. वो इस बात को अपने मन में समा ही नहीं सकते जो इस क्रूस का संदेश है। The message of cross looks like the story of defeat. क्रूस का जो संदेश है वो हार की कहानी लगता है। ऐसा लगता है कि क्या इनका परमेश्वर तो क्या कमजोर परमेश्वर है, ये देखो। It seems like, oh, look at their God, he's so weak. But it's the opposite. पर मुद्दा असल में उल्टा It's ही है। not the story of defeat, Yeah. it's the story of victory. ये हार की नहीं, ये जय की कहानी है। यही तो बात है। That's what it is. That's the mystery, that's the wisdom of God. यही रहस्य है, यही परमेश्वर की बुद्धि है इसमें। मगर जो लोग नहीं समझते, जो नाश हो रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। But the people that are perishing, they will not understand this. They will mock the message of the cross. वो क्रूस के संदेश का मजाक बनाएंगे। मगर जो लोग उसको समझ गए, उस कथा में ये सामर्थ है कि उनको मृत्यु में से आजाद कर दे। उस कथा में ये सामर्थ है उनको श्रापों में से आजाद कर दे। उस कथा में ये सामर्थ है उनको हर पापों के बंधन में से छुड़ा ले। But to those who understand, this story has the power to deliver them from every bondage, to set them free from every sin, and to take them out of every curse. Amen. So शुरू से चलते हैं, अगर इस कहानी को समझना है तो शुरुआत में जाना पड़ेगा। So if you want to understand this story, you have to come to the very beginning. क्यों यीशु को एक काट पे लटकाया गया? Why was Jesus hung on a tree? So बहुत साल पहले, So many years ago, उत्पत्ति की किताब में, once upon a time in the book of Genesis, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया when God created Adam and Eve, और उनको एक बगीचे में रख दिया। and he kept them in a garden. The story starts in a garden.
ये कहानी एक बगीचे में शुरू होती है. और इस कहानी में And in this story, एक पेड़ है जिसको परमेश्वर ने कहा उस पेड़ के फल मत खाना. there is a tree for which God said, do not eat the fruit of that tree. ओके, जेनेसिस उत्पत्ति 2:16 और 17. Genesis 2, 16 and 17. कई लोग ऐसा कर रहे हैं, हाँ बारिश आ रही है. It's just raining. ऐसे देश से तो नहीं आए आप जहां आपने कभी बारिश नहीं देखी. Hope you have not come from a nation where it never rains. तो ठीक है, वचन में ध्यान देते हैं. So focus on the ठीक word. है, उत्पत्ति 2:16. Genesis 2. और 16. यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Okay, so this is the first time death is mentioned. तो ये पहली बार हुआ है कि मृत्यु का जिक्र हुआ. प्रभु ने आदम को कहा इस पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा तो तू क्या होगा, तू मर जाएगा. The Lord told Adam, do not eat the fruit of this tree. The day you do, you will die. उत्पत्ति 3:6. Genesis 3:6. अतः जब स्त्री ने देखा So when the woman saw कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, that the tree was good for food, स्त्री ने क्या किया, what did the woman do? स्त्री ने देखा. She saw. अभी मैंने आपको क्या सुना बताया था, What did I just tell you? सुना क्या था कि What did- फल देखा, और क्या देखा, फल. She had heard not to eat, but she saw that it is good to eat. हर एक चीज जो अच्छी दिखाई देती है जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी है. Everything that looks good is not necessarily good for you. The woman saw, she saw that the fruit looks good. उस स्त्री ने देखा कि वो फल अच्छा दिख रहा है. फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावना, Oh, the fruit looks good to eat. It looks pleasant to the eyes. और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है. And a tree desirable to make one wise. प्रभु ने क्या कहा था इस पेड़ के फल को. What did the Lord say? But now hear this, अब सुनिए. she's coming to conclusion through her own 5 senses. अब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के भरोसे एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है. सबसे बड़ी लड़ाई हमारी Our greatest battle is not even with devil, शैतान के साथ नहीं है. it's with your own 5 senses. आपकी खुद की 5 ज्ञानेंद्रियां ये जो उससे. 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, Our 5 senses, ये हमें बताती हैं क्या सही है क्या गलत है, मगर परमेश्वर की नजर में बहुत बारी वो सही और गलत नहीं होता. these 5 senses tell us what is right and what is wrong, but in the eyes of God that is not the case. आप कुछ चीज देखते हो अपनी आंखों से, आपने देखा, आपने कहा नहीं ये अच्छा है, You look at ये something बुरा है. with your eyes and you say this is good, this is not good. Every believer हर who एक walks विश्वासी, by their 5 senses, the Bible calls them carnal or babe. हर एक विश्वासी जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के भरोसे चलते हैं, बाइबल उनको दुनियावी या बच्चे कहती है. शारीरिक. शारीरिक. मसीह वो है जो उसकी ज्ञानेंद्रियां उसे बताती हैं, उससे वो निर्णय में आता है, उससे नहीं जो वचन बताता है. A carnal believer is one that decides or determines through his 5 senses, not by what the word says. That's exactly what Eve did. Eve ने बिल्कुल यही किया. उसने देखा She saw और वो इस निर्णय में आ गई कि ये तो फल बहुत अच्छा है हमारे खाने के लिए. and she decided this is very good for us to eat. प्रभु ने क्या कहा था, What did the Lord say? क्या होगा अगर तू इस पेड़ के फल को खाएगी. What will happen if you eat the fruit of it? आज इतने सारे लोग Today so many people, शादीशुदा हैं they are married, और वो व्यभिचार में जाते हैं, but they live in adultery. जबकि वचन ने बताया है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी शादी में मृत्यु आ जाएगी.
Even though the word tells them that if you do this, your marriage will मगर suffer उनकी death. आंखें, उनकी ज्ञानेंद्रियां उन्हें कुछ और बताती हैं, But their senses tell them something else. और वे परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। And they despise the word of God. मगर जो उनकी आंखों ने उन्हें बताया, जो उनकी सेंसेस ने उन्हें बताया, वो उसकी बात को मानते हैं। But what their eyes have told them, they do that, they obey that. कितनी सारी शादियां आज मृत्यु आ गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। Death entered so many marriages because they did not obey the word of God. और ये केवल शादी में नहीं है, And this is not ये just हमारे with जीवन marriage. के अलग क्षेत्रों में है। This happens in different areas of our life. या तो आप परमेश्वर के वचन से जी सकते हो जो आपको जीवन की तरफ ले जाएगा, या आप अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरफ जी सकते हो जो आपको हमेशा मृत्यु की तरफ ले जाएगा। Either you can live by the word of God that will always lead you towards life, or you can lead your life by your five senses that always lead you towards death. And hear this, सुनिए, the fruit was not hideous or ugly. वो फल दिखने में भद्दा या गंदा नहीं था. वो फल सड़ा हुआ नहीं था। It was not spoiled or rotten. वो फल जो मृत्यु लाया, वो फल देखने में बहुत अच्छा था। The fruit that brought death was very good to look at. और बहुत सारी बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। And so many times that happens in our lives. तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Then she broke and ate and also gave it to her husband and he also ate. Let me tell you something. मैं कुछ बता दूं आपको. The word is forever settled in the heavens. वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित है. What I mean by that is, मैं ये कह रहा you हूं, cannot change the word. आप वचन को नहीं बदल सकते. अपने पड़ोसी को बोलो, आप वचन को नहीं बदल सकते। Tell your neighbor, you cannot change the word. आप या तो वचन को मान सकते हो या उसको तिरस्कार कर सकते हो। You can either obey the word or you can deny the word. It's as simple as that. इतना आसान है. But if word says something, अगर वचन ने कुछ कहा है, तो वो पूरा होगा। that will come to pass. Okay? परमेश्वर, God was not joking in the garden. परमेश्वर मजाक नहीं कर रहा था बगीचे में. परमेश्वर उन्होंने क्लियर कुछ बता दिया था कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। God told them clearly, if you eat the fruit of this tree, death will come. Now let me tell you one thing so that you understand. मैं एक बात God बताऊं. is not the author of death. परमेश्वर मृत्यु का रचने वाला नहीं है. फिर से बोलूं, Let me say it again. क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिलाता है। Because some people think God gives life, God kills. परमेश्वर मृत्यु का जनक नहीं है, मृत्यु उसकी इच्छा नहीं है। God is not the author of death. He is not the originator or the desirer of death. आपको ये समझना पड़ेगा You कि have to परमेश्वर जीवन है। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर जीवन है। God is life. Amen. And every time your five senses takes you away from life, the five senses takes you towards death. और हर बार जब आपकी पांच ज्ञानेंद्रियां आपको जीवन से दूर ले जाती हैं, तो वो आपको मृत्यु की ओर ले जाती हैं. और मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश करी। And death entered into this world. पहला कुरिन्थियों 15, 1 Corinthians 15:26 लगाओ। I want to show you something. परमेश्वर मृत्यु को कैसे देखता है? How does God see death? ओके, साथ में हम देखते हैं। We will see together. सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह क्या है? सबसे अंतिम दुश्मन या बैरी जो नाश किया जाएगा वो क्या है? The last enemy that will be destroyed is death. That means God considers death as his enemy. इसका मतलब परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन देखता है. और जिस दिन उस बगीचे में मृत्यु ने प्रवेश किया, उस दिन से परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैं इस मृत्यु का नाश करूंगा। And the day death entered into that garden, God decided that He's going to destroy death. So that you have to understand ताकि आप समझो कि क्यों यीशु मसीह क्रूस में आए। why Jesus went to the cross. ओके, सो मृत्यु परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Death is not God's desire. रोमियो 5:12, Romans 5:12. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया।
Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. सो जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खाया, When they ate the fruit of that tree, क्या प्रवेश किया? what entered? मृत्यु. Death. अब आपको बहुत मजा आएगा समझ के कि क्रूस असली में क्या है. Now you will enjoy understanding what the cross is. ओके. यूहन्ना 1:4 में लिखा है यीशु के लिए, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था. John 1:4 says, in him was life, and the life was the light of men. सो जीवन किस में है? Who has life? यीशु में. In Jesus. परमेश्वर में जीवन है. In God is life. यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, चोर तो इसलिए आया कि चोरी करे, हत्या करे, नाश करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? John 10:10, Jesus said, the thief has come to steal, kill and destroy, but I have come that you may have life. ओके. अभी थोड़ा हम जल्दी से देखते हैं कि आप समझो. Let's see so you can understand. बगीचे में क्या प्रवेश किया? What entered in the garden? मृत्यु. Death. पहले आदम से क्या आया? What came from first मृत्यु Adam? आई. Death. आखिरी आदम क्या लेकर आया? What did the last Adam bring? लाइफ. Jeevan. पहला आदम ने क्या किया? What did the first Adam do? एक पेड़ के फल को खाया, He ate the fruit of a tree जिससे क्या आया? that brought death. मृत्यु आई. It brought death. गलातियों 3:13 लगाई. गैलेशियंस 3:13. ठीक है, इसको फिर से मैं हल्के से आराम से बता रहा हूं कि आप समझो. पहला आदम ने क्या खाया? एक फल खाया, और फल क्या लेकर आया? मृत्यु आई. First Adam ate a fruit and it brought death. यहां पे क्या लिखा है देखिए, cursed is everyone who hangs on a tree. श्रापित है वो मनुष्य जो काठ पर लटकाया जाता है. यानी जो पेड़ पे लटकाया जाता है, काट पे लटकाया जाता है, पेड़ पे लटकाया जाता है. यीशु किस पे लटकाया गया? Jesus was hung on a. पहले आदम ने The first Adam एक पेड़ का फल खाया ate the fruit of a tree और मृत्यु आ गई. and death entered. दूसरा आखिरी आदम The last Adam एक पेड़ पर लटक गया. hung on a tree. आप ध्यान से सुनो. Now hear carefully. आखिरी आदम The last Adam वो फल है is the fruit जिसको खाकर by eating whom अनंत जीवन मानव जाति के लिए है. eternal life is for mankind. एक फल को खाकर मृत्यु आई, Eating a fruit brought और death. ऐसे ही एक फल को खाकर अनंत जीवन भी आता है. And in the same way, eating a fruit यीशु brings ने eternal कहा, life. जब तक तुम मेरे मांस को ना खाओ और लहू को ना पियो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है. Jesus said, until you eat my flesh and drink my blood, you don't have life. Cross is the tree of life, and Jesus is the fruit hanging on that tree. क्रूस ही वो जीवन का वृक्ष है और यीशु वो फल है जो उस पेड़ पर है. Oh hallelujah! जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this, it is the tree of life. वो जीवन The का वृक्ष, cross is the tree of life, वो क्रूस जीवन का वृक्ष है and Jesus hangs as a fruit. और यीशु एक फल की तरह उस पर लटका And he said, "You have to eat me, और कहता तुम्हें मुझे खाना होगा and you will have eternal life." और तुम अनंत जीवन के वारिस होगे. Put John 6:51. यूहन्ना 6:51. John 6:51. Jesus said, "As the living Father has sent me, and I live by the Father." यीशु ने कहा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं उसके द्वारा जीता हूं. Okay, I'm sorry. That's put 6:57. 57 or 4. Okay, yes. As the living Father has sent me, and I live by the Father. That means as the Father, because of the Father. जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा,
ओ, जब तक ये सुसमाचार नहीं समझोगे, So he who feeds on me will live. वो because of केवल एक गुरु नहीं है जो अच्छी शिक्षा देने आया, वो जीवन का फल है। He is not just a guru that came to give good teaching. He is the fruit of life. एक फल खाने से मृत्यु आई, Eating a fruit brought death. और वो कह रहा है जो कोई मुझे खाएगा, जैसा मेरा, वो मेरे कारण क्या रहेगा, जीवित रहेगा। He's saying, he who feeds on me will live because of me. You have to understand the mystery of the cross. आपको क्रूस के रहस्य को समझना है। वो केवल एक गुरु नहीं जो अच्छी शिक्षा लेकर आया, He is not just a guru that brought a good teaching. वो फल बन गया। He became that fruit. He is that tree. वो पेड़ है, He is that fruit. वो फल है। आप 51 लगाइए, 651। 6:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी। I am the living bread which रोटी को came क्या down करते हो from आप? heaven. What do you हाँ? do with bread? You eat. जीवन की वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। I am the living bread which came down from यदि heaven. कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। If anyone eats of this bread, he shall live forever, and the bread that I shall give is my flesh. Now the question comes, अब सवाल ये आता है, कैसे मांस खाएं उसका आज? how do we eat his flesh today? Because people don't understand. He's not saying eat my literal flesh. वो ये नहीं कह रहा कि वो वास्तविक मांस नहीं कह रहा उसका। इसके पीछे एक मिस्ट्री है, और इसीलिए इस ईस्टर संडे के बाद वाला जो संडे है, हम लोग वो मिस्ट्री को समझेंगे कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। और अगर आप प्रभु भोज की सामर्थ को समझ गए, There is a mystery behind it. That's why the next Sunday after the Easter, we will understand the mystery of the Holy Communion. If you understand it, मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। death has no authority over you. सी, यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आया। Jesus did not उसने नहीं bring कहा religion. चोर चोरी करने नाश करने आता है, मैं इसलिए लाया कि तुम ईसाई बन जाओ और बहुतायत में ईसाई बनो। He did not say that thief comes to steal, kill and destroy. I came to make you Christians and very religious. मैं इसलिए Christians. आया कि तुम्हारा नाम जॉन डेविड ये सब हो, नहीं। He didn't say I came to मैं make your किस name लिए आया John कि David. तुम क्या पाओ, जीवन पाओ। He said, I came क्या so you पाओ, have life. धर्म नहीं पाओ, Not जीवन religion, पाओ। but life. वो जीवन देने के लिए आया, He came और to give बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। And he came to give life in abundance. ये हमें समझना है कि क्रूस की कथा कितनी महान है। We have to know how great the story of the cross is. Though I'll tell you, and then obviously अभी मैं आज नहीं बताऊंगा आपको, अगले संडे में इसको और डीप में आपको ले जाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि मांस और लहू का मतलब क्या है। I will take you deeper in the word in the coming Sunday to tell you what it means to have flesh and blood. मृत्यु आने का कारण क्या था? What was the reason for death to come? क्या था? अनाज्ञारिक होकर उसने क्या खाया? फल खाया। They disobeyed and ate a fruit. आज अनंत जीवन हमारे जीवन में इसलिए नहीं आता कि मैंने बहुत उपवास किया, मैंने बहुत दान पुण्य किया, मैंने बहुत कुछ किया। जैसे आदम ने अनाज्ञाकारी कर होके फल खाया और मृत्यु आई, हमने आज्ञाकारी होकर एक और फल को खाया, और उस फल के खाने के कारण अब हम अनंत जीवन हमारा है। Eternal life does not come to you because you fasted or you prayed, but just as because of disobedience death came, we became obedient and we received this fruit of life. That's why we have eternal life. Amen. इसीलिए कई लोगों को इस समझ में नहीं आता। That's why some people don't मैं भी understand उनमें this. से एक था, I was one of them जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। when I did not know the Lord. मैं सोचता था अगर भगवानों की एक लिस्ट बनाई जाए I used to think if you make a list of all तो the यीशु deities, मसीह सबसे नीचे होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ये बोलता था, then I used to say that Jesus would be the last of that list. helpless, dying on the cross. वो जिसको जो कुछ नहीं कर सका अपने लिए, इसको क्रूस पे मर गया बस।
हाँ, अगर कोई अब आपको बोले कि अरे तुम्हारा यीशु तो मर गया, खुद को नहीं बचा सका, If someone tells you your Jesus died on the cross, he could not save himself. take them to Hebrews 2:14. इब्रानी 2:14 पे ले जाना उनको. Okay? Take them to Hebrews 2:14. इब्रानी 2:14 पे ले जाना. What's in Hebrews 2:14? क्या लिखा है इब्रानी 2:14? इब्रानी 2:14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू में भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया. वो परमेश्वर जो एक आत्मा है, God who is a spirit, वो परमेश्वर जो बाइबल बताती है कि एक ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता उसकी उपस्थिति में. God who sits in such an unapproachable light that no one can enter into his presence. केवल मनुष्य ही नहीं, Not just man, वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत भी उसकी महिमा के तेज को झेल नहीं सकते. but the word tells us that even the angels cannot stand before the glory of that emanates from him. कभी दिन की कड़ाके की धूप में जब सूरज पूरा ऊपर हो, आप खुली आंख से देख सकते हो सूरज को, Can you look at the sun when it's right in the middle of the day? और वो सूरज की रोशनी तो 0 वॉट की रोशनी है परमेश्वर के आगे. And that sun is like a 0-watt bulb before God's light. So the light that emanates out of him, जो the प्रकाश power उसमें that से- emanates out of him, जो सामर्थ्य, जो प्रकाश even उसमें the से निकलता है, angelic beings cannot contain it. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी उसको सह नहीं सकते. So वचन कहता है वो दोनों पंखों से अपनी आंखों को छुपा लेते हैं The word says they hide their eyes with 2 wings. और 2 पंखों से अपने पाँव को छुपा लेते हैं And to with- show honor to him. With 2 they cover their feet to honor him. और 2 पंखों से वो उड़ रहे हैं और परमेश्वर के सामने कह रहे हैं होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज हु इज एंड हु इज टू कम. होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज हु इज एंड हु इज टू कम. और वो 2 पंखों से उड़ते हुए कह रहे हैं पवित्र 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 वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है. और वो परमेश्वर And that God जो मर नहीं सकता, who could not die, मगर क्योंकि लड़के यानी उसके बच्चे मांस और लहू पहन कर आए, but because his children took part in flesh and blood. इंग्लिश में चिल्ड्रन ने हिंदी में लड़के कर दिए, पता नहीं क्यों. बच्चे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान सहभागी हो गया. Because the children took part in flesh and blood, he himself likewise shared in the same. Hear this. सुनिए, यीशु मसीह Jesus came to abolish death. यीशु मृत्यु का नाश करने के लिए आए. मेरे पीछे बोलो, यीशु मृत्यु का नाश करने के लिए आए. अगर आप इसको नहीं समझोगे तो उस क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते. If you don't understand this, you cannot understand the story of the Jesus gospel. came to abolish death. यीशु मृत्यु को नाश करने के लिए But आए. as God, he cannot die. लेकिन परमेश्वर होते हुए वो मर नहीं सकते. So जैसे बच्चे मांस और लहू पहन कर आए, वो भी उनका सहभागी हो गया. So just as children put on flesh and blood, he also became partaker क्यों? with them. आगे बढ़ते हैं. Why? Let's read. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, उसे हरा दे. यीशु मरने के लिए आया ताकि मरने के द्वारा मृत्यु को नाश कर दे. Jesus came to die so that through death he will destroy death. So cross is not where Jesus died. Cross is where death died. Death was destroyed. So क्रूस वो जगह नहीं जहां पर यीशु मरे, क्रूस वो जगह है जहां पर मृत्यु मरी, उसने मृत्यु को नाश कर दिया. Oh, hallelujah. Oh, he cannot die as God, so he became a man. क्योंकि वो परमेश्वर होते हुए मर नहीं सकता था, इसलिए वो मनुष्य रूप धारण करके आया. And he died for you and for me. और आपके और मेरे लिए मर गया. And he destroyed the power of death over you and over me. और आपके ऊपर से और मेरे ऊपर से मृत्यु की ताकत को नाश कर Oh, दिया. hallelujah. अब Hallelujah. मृत्यु का आपके और मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. Now death has no authority over you and me.
Now death will not be our end, but it will be a beginning of a glorious eternity. अब मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, अब मृत्यु एक महिमा से भरे अनंत की शुरुआत है। अब जब आप अपनी उस बिस्तर में होगे आखिरी सांसों में, आप ये नहीं कहोगे हाय 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 उस पार क्या है। आपको पता है उस पार मेरा यीशु मेरे लिए खड़ा है। When you are in your last moment, taking those last breaths, you will not be afraid. You will know that my Jesus is waiting, expectant on the other side. Amen. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये धर्म के बारे में नहीं है। That's why I'm telling you this is not about ये religion. ना तो धर्म के बारे में है ना कर्म के बारे में है। This is neither about religion nor about works. ना मान सम्मान ना दान किसी के बारे में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में है। This is not about sacrifices or anything else. It's about what Jesus has done. उसका वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया वे नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। His word says all those that believed in his name, they will not perish, they will have eternal life. Amen. Amen. The more you understand the gospel, the bolder you will be. Oh, you'll have this assurance. Death has no hold over me. Death has no hold over my family. We are together in this side of the life. We shall be together on that side of the life because we belong to Jesus, the one who disarmed principalities, who destroyed death, and who said, I am one who was dead, but now I am alive forever. क्योंकि जब आप सुसमाचार को जानते हैं आप साहसी होंगे, आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। आप जानते हैं आप एक परिवार इस तरफ भी है और उधर भी, उस यीशु के द्वारा जिसने ताकतों को हरा दिया, हमेशा के लिए नाश कर दिया। उसने कहा मैं मर गया था पर अब मैं जीवित हूं, हमेशा के लिए जीवित हूं। हालेलुया। अभी तक शैतान के पास चाबी थी दरवाजे की। इंसान मरता था, शैतान कहता रहा मेरे पास आ। Till now the devil had the keys to death. When man died, he took hold of it. And he used to put man, shut him और वो मनुष्य को बंद कर देता था in Hades. अधोलोक में। He had the power over death. Hear this. उसके यहाँ पे क्या पास लिखा है? मृत्यु के ऊपर ताकत थी। That through death he might destroy him who had the power over death. That means before Jesus went on the cross, who had the power over death? The devil. कि मृत्यु के द्वारा वो उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी। शैतान के पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी क्रूस से पहले तक। बस हम एक बार फिर से स्क्रिप्चर को पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को उसे नाश कर दे, निकम्मा कर दे। जिसको मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी उसको नाश कर दे। He who had the power over So death to before the destroy. death of Jesus, यीशु की मृत्यु से पहले devil had the power over death. शैतान के पास ताकत थी मृत्यु के ऊपर। Oh hallelujah. This Friday is so good. ये फ्राइडे बहुत ही अच्छा है। This Friday is so good. ये फ्राइडे तो बहुत ही अच्छा है। This Friday is so good अरे ये फ्राइडे तो बहुत ही अच्छा because है। death was destroyed this Friday. क्योंकि मृत्यु नाश की गई इस फ्राइडे के दिन। Hallelujah. Amen. Amen. अभी आपने कभी सोचा है Have you ever thought? फ्राइडे को in the morning 9 a.m. Jesus was crucified. सुबह 9 बजे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। अभी हमारे पास समय नहीं कि मैं आपको स्क्रिप्चर से ले चलूं, पर 9 बजे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, 12 बजे अंधेरा हो गया और 3 बजे उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। At 9 a.m. he was hung on the cross. At 12 it was dark, and at 3 he left his soul, spirit. संडे के दिन वो पुनरुत्थानित हुआ। On Sunday he was resurrected. और जब मरियम ने सोचा कि वो एक माली है तो उसने कहा मुझे मत छू क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी। तो मेरा सवाल ये है फिर यीशु मसीह कहाँ था 3 दिन? And when Mary was about to touch him, he said, "Don't touch me. I have not yet gone to my Father." So my question is, where was Jesus for 3 days? If Jesus did not ascend to his Father, अगर यीशु अपने पिता के पास नहीं where गए, was Jesus Friday night? Where was Jesus Saturday? Where was Jesus Sunday? तो शुक्रवार की रात को, शनिवार और सोमवार कहाँ थे यीशु मसीह? Oh hallelujah. Oh hallelujah.
He went to destroy the one who had the power over death. वो उसको नाश करने गए थे जिसके पास मृत्यु की ताकत थी. Hallelujah. 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 Oh. See, we have to understand. हमें समझना It है was not just physical death. कि सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं That Jesus abolished. जिसको यीशु ने नाश किया, The spiritual death as well. लेकिन आत्मिक मृत्यु भी. So the spirits of men were kept in bondage. मनुष्यों की आत्माएं बंधन में रखी गई थी, बंधी रखी गई थी. और वो जो जेल की चाबी थी, And the key to that jail, अधलोक के जो जेल की चाबी थी, वो किसके पास थी? the keys किसके of पास the jail थी? of Hades were शैतान के पास थी. with the devil. मगर एक गुड न्यूज है आपके और मेरे लिए. But we have a good news. Can you put Revelation 1:18? प्रकाशित वाक्य 1:18. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? तैयार हो? अगर आप क्रूस की कथा समझ गए तो मृत्यु का डर हट जाएगा आपके जीवन If you से. understand the gospel, the power of the cross, you will have no fear of death. मैं मर गया था. I was dead. Who is saying this? कौन कह रहा है? Almighty God. सर्वशक्तिमान Jesus. परमेश्वर, यीशु. मैं मर गया था. I was dead. और अब देख And मैं behold, युगानुयुग जीवता हूँ. I am alive forevermore. Are you ready? तैयार है? और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास And I हैं. have the keys of Hades and death. Amen, amen, Amen. amen. Hallelujah. Hallelujah. अब मृत्यु और अधलोक की चाबी किसके पास है? Who has the power of death and Hades now? So अगर अधलोक की चाबी अब यीशु के पास है If the keys to Hades are और with यीशु Jesus, आपका प्रभु है and Jesus is और your वो Lord, यीशु मारा गया and that कि Jesus मृत्यु died, के द्वारा उसको हरा दे जिसको मृत्यु के ऊपर सामर्थ है. that He would destroy the one that had power over death through death. That means hear this. इसका मतलब सुनो, Hell is forever locked for you. नरक आपके लिए हमेशा के लिए बंद किया I जा चुका said है. hell is forever locked for you. मैंने कहा नरक आपके लिए हमेशा के लिए बंद किया गया है. Amen. If someone tells you go to hell, अगर आपसे कोई कहता है भाड़ में जाओ, and I'm so sorry, that's not possible. बोलना माफ करना पर मुमकिन नहीं है. That's not possible. बोलो संभव नहीं है. My Jesus went to hell on my behalf, मेरा यीशु नरक गया मेरे and लिए, He has the keys of Hades and death, और उसके पास मृत्यु और and अधोलोक He की has चाबी है. shut the door of hell for His और family. उसने नरक का दरवाजा बंद कर दिया अपने परिवार के जो लिए. अब मसीह में है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. He that is in Christ, there is no more condemnation over them. Hallelujah. Oh, मगर जो नाश हो रहे हैं But those that are perishing, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है. for them the gospel, the story of the cross is foolishness. मगर हम लोग But to us जिन्होंने उद्धार पाया, that have received salvation, वो क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है. that story of the cross is the power of God for us. Jesus utterly destroyed devil who had the power of death. यीशु ने शैतान को पूरी तरह से नाश कर दिया जिसके पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी. And He has shut the gates of Hades for His family. और उसने अपने परिवार के लिए अधोलोक के दरवाजे को लॉक कर दिया है. देख मैं मर गया था. Behold, I was dead. That's the mystery. ये रहस्य है. देख मैं मर गया था. Behold, I was dead. मुझे मरने की जरूरत नहीं थी, I did not have to die, पर मैंने तेरे लिए मृत्यु को चखा. but I tasted death for you. ध्यान से सुनो इस बात को. Hear carefully. यीशु ने मृत्यु को चखा Jesus tasted death आपकी और मेरे लिए, for you and for me, कि ताकि जब हमारा आखिरी समय आए, so that in our last moments, आप और मैं मृत्यु को नहीं चखेंगे. you and I will not taste death. Do you know the death of the sting has been taken away from a believer? आप जानते हैं मृत्यु का डंक एक विश्वासी पर से तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया. देखा है आपने जब डंक पड़ता है किसी को? Have you seen when someone is stung? That means when your last day comes, जब आपका आखिरी दिन आता है, you will not even know when you will step into that glory. आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब महिमा में प्रवेश कर जाओगे. Before death could sting you, इससे पहले कि मृत्यु आपको डस सकती है, God will call your spirit out of your body. परमेश्वर आपकी आत्मा को शरीर से बाहर बुला लेगा. अब ये प्रभु मैं कब मरा मुझे तो पता ही नहीं चला. You will say, Lord, when did I die? प्रभु I did not कहेगा know. मैं मरा इसलिए तुझे पता नहीं चला, मैं तेरे लिए मरा.
Jesus will say, I died for you, that's why you didn't get to know. जो मरने का वो स्टिंग था, जो दर्द था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया. The sting of death I took upon myself. Can you imagine people are stoning Stephen? आप कल्पना कर सकते हैं लोग पथराव कर रहे हैं स्टीफनुस पे. वो दर्शन देख रहा है. He's looking at, he's seeing a कह रहा है vision. मैं पिता को और यीशु को उसके बगल में देख. He's saying, I'm seeing the Father and Jesus at his right किसी hand. को पत्थर मार रहे हो आप. If you are throwing stones at someone, The sting of the death has been taken away. मृत्यु का डंक हटा दिया गया है. Amen. Amen. I was hearing a story, मैं कहानी सुन रहा था. a testimony एक गवाही. of a man who was caught up to heaven, एक व्यक्ति जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे and he met Apostle Paul. और वो अपोस्टल पॉल से मिले. And Apostle Paul said, और अपोस्टल पॉल ने कहा, when they were about to behead me, जब वो मेरा सर कलम करने वाले थे, before they could cut my head, इससे पहले कि वो मेरा सर काट Jesus पाते, appeared in front of me, यीशु मेरे सामने आके and he खड़े said, हुए Paul, come. और कहा, पॉल आओ. So he said, me and Jesus was there, और उन्होंने कहा, मैं और यीशु खड़े and I थे saw they cutting my body, और मैं देख रहा था कि वो मेरा शरीर काट रहे but I हैं, felt no pain. पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ. The sting of death has been taken away. मृत्यु- Oh death, where is your victory, oh death? Where is your victory, oh death? You have been defeated by our Lord forever. मृत्यु का डंक हटा दिया गया है. मृत्यु की जय कहाँ रही? हमारे प्रभु ने उसको हरा दिया हमेशा के लिए. Amen. That's the mystery. ये रहस्य है. That's the mystery. यही वो रहस्य है. So हम जो आज कम्युनियन लेते हैं, So when we take communion जो हम today, प्रभु भोज लेते हैं, when we वो partake in रीति communion, रिवाज की तरह नहीं लेते. we don't do it as a ritual. वो एक सेलिब्रेशन है कि मृत्यु का अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. It is a celebration that death has no more authority or power Why do you over think me. Jesus said, remember my death every time? Remember my death. Because if you remember my death, death will have no hold over you. क्यों यीशु ने बार बार ये बात कही कि मेरी मृत्यु को याद करना, मेरी मृत्यु को याद करना, क्योंकि जब आप उसकी मृत्यु को याद करोगे, मृत्यु का आप पर कोई जोर नहीं, कोई वश नहीं होगा. Amen. Because he died क्योंकि वो मरा not only for you, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, he died as you. वो आपके स्थान पर आपकी That's the तरह gospel. मरा. Amen. वो केवल हमारे लिए नहीं मरा, He didn't just die for us. वो हमारे, कैसे बोलेंगे, हमारी जगह मरा. He died as us in our place. That's the beauty of the cross. ये खूबसूरती है क्रूस की. It was never about a religion. ये कभी धर्म के बारे में था ही नहीं. It is about death and life. ये मृत्यु और जीवन के बारे में था. God is the author of life. परमेश्वर जीवन का रचने वाला है. The Bible does not say, put John 1:4. The Bible doesn't say, in him is death and life. Have you ever read it anywhere? बाइबल ये नहीं कहती उसमें मृत्यु और जीवन था. उसमें क्या था? What was in him? लिखा है जीवन और मृत्यु था. Is it written हाँ? in क्या him था was death उसमें? and life? In him was life. Death and life cannot coexist together. मृत्यु और जीवन एक साथ एक जगह Light पर नहीं हो and सकते. darkness cannot coexist together. प्रकाश और अंधकार एक साथ एक जगह नहीं हो सकते. उसमें जीवन था. In him was life. वो जीवन को लेकर आया आपके लिए. He brought life for The you. entire gospel is about life. सारा का सारा सुसमाचार जीवन के बारे में है. And life in abundance. और बहुतायत के जीवन के बारे में. This is the book of life. ये जीवन की किताब है. जितना ज्यादा आप उसके वचन को मनन करोगे, उतना जीवन प्रकट होगा. The more you meditate on his word, the more life will manifest. जितना आप अपने लॉजिक को हटाकर वचन को मानोगे और उसके पीछे चलोगे, उतना वो आपको जीवन की तरफ ले जाएगा. The more you get rid of your logic and walk after his word, he will lead you towards life. Amen. Amen. क्योंकि यीशु ने जो कहा वो दुनिया के स्टैंडर्ड में इलॉजिकल लगता है. Because what Jesus said seems illogical as per the worldly standards. देखो कोई तुम्हारे साथ
1 मील चले, ज्यादा चलो, 2 मील चलो, He says, कोई someone takes you 1 mile, go. कुत्ता मांगे go to- पैजामा भी दे दो. Someone gives you, ask for your top, give them your pants. It's illogical. It's a lot. वो समझ नहीं आता वो बातें. That's why gospel, you cannot comprehend the gospel with your natural mind. The Bible says the natural mind cannot comprehend the things of the Spirit. बाइबल कहती है जो शारीरिक मन है आत्मा की बातें समझ नहीं सकता. मुझे आज भी याद है, मैं नया प्रभु में आया था, नया. I still remember I was very new in the Lord. और मेरे और मोनू के पास केवल अकाउंट में 6,000 रुपए पड़े थे. And me and Pastor Monica just had 6,000 rupees. Now understand, before I tell this, it's not about money. Hear this. ये पैसे के बारे में नहीं जो मैं बताऊं. Okay? पैसे के बारे में नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनना. Hear carefully. प्रभु ने मुझे बोला ये 6,000 इस फलाने व्यक्ति को दे. The Lord told me go and give this 6,000 to that मेरे person. अकाउंट में कितने थे? How much did I have in my account? 6,000. 6,000. Now, natural logical mind will say, this is foolishness. अब स्वाभाविक दिमाग कहेगा ये तो मूर्खता है. कई बारी प्रभु की बातों को मानना मूर्खता लगती है. Many times obeying the voice of God seems like foolishness. तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मोनू मेरे को ऐसे प्रभु ने बोला है, तो उन्होंने कहा आप वो करो जो प्रभु ने बोला है. So I said to my wife, this is what we have to do. She said, do what the Lord has told you. अब मैं समझा वो क्यों प्रभु ऐसा कर रहा था. Now I understand why God was doing that. क्योंकि वो मेरा विश्वास मेरे अकाउंट से हटाकर वो मुझे बताना चाहता था तू अपने अकाउंट में जो पैसा है उससे जीवित नहीं है. मैं यहोवा जायरा हूं, मैं तेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूं, तुझे ब्लेस करने वाला परमेश्वर हूं, तू मेरी वजह से जीवित है, मैं तेरा प्रबंध, मैं तेरा सोर्स हूं, मैं Because he was removing my trust from my bank account, he was trying to tell me, I am the Lord Jehovah Jireh and I am your provider. And every time I have learned, every time I have obeyed God, it has always led me to life. और हर बार जब मैंने प्रभु की आवाज को माना है वो मुझे जीवन की ओर ले गई, ये मैंने सीखा है. And so many times our natural senses, आपके natural senses आपको गड्ढे में ले जाएंगे. And your natural senses will lead you into a ditch. Okay. John 6:54. यूहन्ना 6:54. John 6:54. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up at the last day. Who will be raised on the last day? कौन आखिरी दिन में जिलाया जाएगा? जो उस फल को खाएगा, He who will eat of that जीवन fruit, के फल को, the fruit of life, जो प्रभु यीशु मसीह है. which is the Lord Jesus Eating himself. him उसको खाना is our assurance वो हमारे लिए that we will be raised on the last day. आश्वासन है कि हम आखिरी दिन में उठाए जाएंगे. Amen. और आप जानते हैं क्रूस में क्या होता है? I'll just say one last verse and then we'll pray. And you know what happened on the cross? कुलूसियों 2:14 और 15. और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है. He wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and has taken it out of the way, having nailed it to the cross. हर एक वो लेख जो आपके विरोध में था यीशु ने उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हटा दिया है. Everything that was written against you, Jesus nailed it to the cross and took it out of the way. हर एक श्राप, Every हर curse, एक बुरी बात जो आपके विरोध में लिखी गई थी क्रूस में उसको नाश कर दिया गया है. every evil that was written against you, it has been destroyed on the cross. बहुत सारे लोग आज क्रूस को केवल फॉरगिवनेस देखते हैं. Many people just see the cross as forgiveness. वहां पे हमारे पाप क्षमा हो गए. Oh, our sins are forgiven. Yes, it's a place of forgiveness. हाँ, वो क्षमादान का स्थान. But it's a place where death was abolished. लेकिन वो स्थान है जहाँ पर मृत्यु को नाश किया गया. Amen. It's the place where principalities and powers were disarmed. वो स्थान है जहाँ पर ताकतों और प्रधानता को निकम्मा कर दिया गया. इसीलिए आपको समझना है क्रूस के बाद सब कुछ बदल चुका है. That's why you have to understand everything has changed after the cross.
मैंने कहा क्रूस के बाद सब कुछ बदल चुका है. I said everything changed after the cross. Let me say this. Are you ready? तैयार हो? I'm going to say something मैं कुछ कहने वाला हूँ which will shock you. जो आपको हैरान कर देगा. The devil that Jesus faced and the devil that you face is not the same person. जिस शैतान का सामना यीशु मसीह ने किया और जिस शैतान का सामना आप आज करते हो वो एक ही व्यक्ति नहीं है अब. जिस शैतान का सामना यीशु ने किया उसके पास सामर्थ थी. The devil that Jesus faced had authority. But the Bible says Jesus spoiled principality. That's the only one word that is used in the New Testament. पर बाइबल कहती है यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उनका. निकम्मा कर दिया. He made them completely useless. किसी ने देखा है बुचर की दुकान में, अगर कोई वेजिटेरियन है तो मुझे माफ करिएगा, मगर किसी ने बुचर की दुकान में देखा है, अगर आप कभी गए हो, जब वो मुर्गे के पंख निकालता है, देखा किसी ने? हाँ, मुर्गे के पंख फाड़ते हैं. If you've ever seen that they strip off the wings of the chicken. यीशु ने यही किया क्रूस में शैतान के साथ. That's what Jesus did to the devil on the cross. Jesus stripped devil every principality and power. Jesus stripped them off. यीशु ने शैतान से हर एक प्रधानता और ताकत से उनसे उधेड़ दी वो सारी सामर्थ्य. Amen. उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार, चल नीचे आ, उतर नीचे. He brought them down from wherever they were. प्रॉब्लम ये है आज चर्च ने फिर से प्रिंसिपैलिटी को बहुत ऊपर कर दिया. The problem is today the church has put the principalities back in that place. Especially the groups that are into heavy spiritual warfare. खासकर वो ग्रुप्स जो बहुत आत्मिक मल्लयुद्ध में होते हैं. That's why I had to write a book. You have authority. इसीलिए मुझे एक किताब लिखनी पड़ी कि आपके पास अधिकार है. अरे यीशु ने गिरा दिया उसको ऊपर से, क्यों उठा रहे हो उसको वापस वहां बैठा रहे हो? Jesus threw them down from wherever they were seated. Why are you putting them back? Oh, you don't know. ओह तुम्हें नहीं पता. There is a big principality over Delhi. एक बड़ी प्रधानता है दिल्ली के ऊपर. Yeah, a principality that was disarmed, that was defeated, that was stripped of the power. That principality, yes, you are right. हाँ वो प्रधानता जिसको उधेड़ दिया गया सारी ताकत को, उससे जिसको निकम्मा कर दिया गया, नाश कर दिया गया, बिल्कुल सही कह रहे हो. Otherwise, do you believe the Bible or not? नहीं तो आप बाइबल को सच मानते क्या हो आप कि नहीं? वचन को मानते हो नहीं मानते हो? Do you believe in the word or not? तो बाइबल में लिखा है यीशु ने उनको नीचे उतार कर उनका खुल्ला मजाक बनाया. The Bible says Jesus spoiled principalities and made an open show of them. Oh, hallelujah. क्रूस के पीछे कुछ मजेदार हो रहा था. Something amazing was happening behind the cross. उसने उस शर्म को सहा, He suffered the shame. वो नंगा होकर क्रूस पे चला गया, मगर जब उसका आत्मा अधलोक में गया उसने पकड़ा शैतान, इधर आ तू. He was stripped naked on the cross, but when his spirit descended into hell, he took the devil. चाबी दे वापस, Give me back the keys. चाबी दे वापस, Give me the keys. मृत्यु की और अधलोक की चाबी दे The वापस. keys to death and Hades. और Give me उस back. चाबी को लेकर And he took वो those keys. तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठा. He defeated death on the third day. हालेलुया. क्या ही धन्य है आप और मैं जो हम उस मसीह के हैं. How blessed are you and I that we belong to Christ. अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. Death has no more authority over us now. हालेलुया. Hallelujah. Death cannot touch you. मृत्यु आपको छू नहीं सकती है. आपको समझना पड़ेगा. What death is to the people outside is not the death for you now. जो मृत्यु बाहर वाले लोगों के लिए है वो आपके लिए मृत्यु नहीं है. नहीं. बाइबल कहती है तुम शोक मत मनाओ बाहर के लोगों की तरह. The Bible says you don't be sorrowful like the people that are outside. अरे वो तो मस्त है महिमा में परमेश्वर के साथ. They are rejoicing in glory with God. Put that scripture in Revelation. Blessed are those who die in the Lord. अब जो मसीह में मरता है बाइबल कहती है वो धन्य है. Now he that dies in Christ, the Bible says he's blessed. Blessed. धन्य है वे जो मसीह में मरते हैं. They are blessed that die in Christ. समझो इसको. Understand? और मैंने स्वर्ग में ये शब्द सुना. कहां सुना? स्वर्ग में ये बोला जा रहा है. मैंने स्वर्ग में ये शब्द सुना कि लिख
जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. इसीलिए इस पृथ्वी में जब हो, So when you're on the earth, एक सच्चा जीवन जियो। live a true life. आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। You cannot fool anyone. मैंने आपको क्या बोला? स्वर्ग के राज्य में कोई पर्दा नहीं, सब नग्न है। In the kingdom of heaven there are no curtains, everything जैसा is आप जीते naked. हो, The way you live जो your आपके life, दिलों के उद्देश्य है, the motives of your अगर आप heart, रात में किसी और के लिए घुटने टेकते हो, If you come on your अगर knees आप for किसी someone की else, मदद करते हो, if you help अगर someone, आप एक पवित्र जीवन if you जीते live a हो, holy life, जिस दिन आपका वो बुलावा आएगा और आप जाओगे, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके काम भी आपके साथ साथ आपका पीछा करेंगे। the day you are called and you go, you will not go alone, your works will follow you when you go. और अगर एक अच्छा जीवन जिया, आपने प्रभु में एक ब्लेस्ड जीवन जिया है, तो बहुत लंबी कामों की ट्रेन लेके जाओगे आप। And if you काम live, आ रहे हैं आपके पीछे। if you lived a blessed life in the Lord, you'll have a long trail of good works behind you. Amen. So जो दुनिया के लिए मृत्यु है, वो अब आपके और मेरे लिए मृत्यु नहीं है। So death, which is death for the world, is not the same death for you and I. इसीलिए थेसलोनियों की पत्री में लिखा है, तुम दुनिया की तरह शोक मत मनाना। So in the book of Thessalonians it says, do not be sorrowful like the world. किसी की फैमिली चली गई अमेरिका, Somebody's अब देखा वो रो family, रहे अमेरिका चले गए हमारे। somebody's family बता went रहे to बहुत America. बढ़िया they जगह cried. चले गए, मस्त है वहां पे, मजे में है। They'll say, oh, they are very happy. It's a very good place. अरे अमेरिका से बहुत अच्छी जगह गए हैं वो। Oh, they have gone to a much better place than America. अपने कामों से, अपने परिश्रमों से विश्राम पाकर। They have received rest from their labors, from their works. धन्य है वे जो वचन पर दिन रात मनन करते। सो जब आप पृथ्वी में हो, आप धन्य हो। जब आप वहां चले जाओगे, आप धन्य हो। Blessed are they that meditate on God's word day and night. When you're on the earth, you're blessed. When you're there, you're blessed. Amen. The power of death has been broken against your life. आपके जीवन के विरुद्ध मृत्यु की ताकत को नाश कर दिया गया है. अब लंबा जीने का केवल एक कारण है Now there's only one reason why we live a long life. कि दीर्घायु हम जिएंगे, We will live a long life कि अकेले नहीं जाना है। so that we don't go जितनी alone. आत्माएं अपने साथ ले जा सकते हो, उतनी आत्माएं अपने साथ लेके जाना है। We will take with us as many souls as we can. Do you know the Bible says he who wins souls shall shine like stars in heaven. बाइबल कहती है जो प्राणों को बचाता है वो सितारों की तरह चमकेगा स्वर्ग में. Amen. मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, अभी तो ये ट्रेनिंग है यहाँ पे, I told you last Sunday also, this is just training. तो ट्रेनिंग है हमारी। This is just training. ऑल ये प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं हमेशा अनंत को अपने आगे रख के जीऊं। And pray and tell the Lord, Lord, give me this ability that I may always keep eternity in front of me. मैं एक गवाही सुन रहा था, मेरे मन में आ रही, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर। I was hearing a testimony. तो वो एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक बूढ़े एक कपल था, पति पत्नी, उनके घर में गए। A man of God went to an old couple's house. और उनके घर में जब वो गए तो कारपेट जो थी वो फटी हुई थी जगह जगह से। When he went to their house, the rug they had was torn in different places. और उनकी बेटी उस दिन उनसे मिलने आई, जब ये परमेश्वर के दास उनके घर में रुके हुए, तो उनकी बेटी मिलने आई। And their daughter was visiting them when this man of God was staying there. और उनकी बेटी उन पे बहुत गुस्सा हो रही थी, कह रही थी मैंने आपको पैसे दिए थे नई कारपेट लेके, आप क्यों मेरी बेइज्जती कराती, क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार में उसकी शादी हुई। And the daughter was very angry with them. She said, I gave you money to get a new carpet. Why do you insult me like this? Because she was married in a rich family. और ये जो पति पत्नी है, And this husband wife, इन्हें पता चला कि एक अनाथालय है, वहाँ पे बच्चे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, इन्होंने पूरा वो जो पैसा था
जो कारपेट का वो वहां दे दिया। They came to know that there's an orphanage where children don't have food to eat, so they took all the money for that carpet and they gave it there. उस रात को जब वो अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, वो जो परमेश्वर के दास थे, प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग उठा लिया उन्होंने। That night when that man of God was in their house and he was praying, the Lord Jesus lifted him up into heaven. और प्रभु ने उन्हें एक मैंशन दिखाया, And the Lord showed him a mansion. एक घर दिखाया A house. जिसकी पूरी दीवारें अलग-अलग प्रेशियस रूबी स्टोन्स इससे बनी थी। All the walls of the house were made with different precious rubies and stones. तो प्रभु ने उनसे कहा, तू जानता है किसका घर है? The Lord said, do you know whose house this is? तो प्रभु ने कहा, ये जो व्यक्ति है जिसके घर में तू है। The Lord said, the people in whose house you're staying. और प्रभु ने कहा, हर एक पत्थर को जब तू देखे तो ध्यान से देख। तो जब उन्होंने हर एक पत्थर को देखा तो उसके पीछे वो बलिदान जो उन्होंने जिया वो उनको गवाही दिखने लग गई। And the Lord said, look at each precious stone. And when he did, he saw the sacrifice they had given behind every story. जैसा हम प्रभु के साथ जीते हैं आज, The kind of life we live वो for the Lord today केयरफुली लिखा जा रहा है। is being written down carefully. यीशु ने कहा, Jesus said, जो मेरे नाम से एक व्यक्ति को एक गिलास पानी भी पिलाएगा, किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। he who offers a glass of water in my name to someone will not lose their reward. आप देखोगे कई लोग हैं बिल्कुल एक पांव कब्र में हैं, मगर अभी भी हाय मेरी जमीन, हाय और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। You'll see some people, they're on the verge of dying, but yet they don't want to leave their land. They want more money. नहीं, No. हमारा असली धन Our real पैसा treasure नहीं, is not हमारी money, गाड़ी नहीं, not our हमारा car, बैंक बैलेंस नहीं, not our bank हमारा balance. असली धन प्रभु यीशु मसीह है। Our real और treasure याद is रखना, Jesus. इस धन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये धन आपके पास अनंत तक रहने वाला है। And no one can take this treasure away from you. You will always have this with you in eternity. Amen. So इस गुड फ्राइडे की सर्विस में आप एक निर्णय लो। So on this Good Friday अदरवाइज service, ऐसे हर गुड फ्राइडे जाते रहेंगे, take this decision Easter of the जाते service. रहेंगे। Otherwise, Good Friday and Easter will pass. एक निर्णय लो आज Take a कि decision मैं today. पूरी सच्चाई से, That with all पूरी honesty, ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलूंगा। all truthfulness, I will मैं follow. उसके the Lord. राज्य को तुच्छ नहीं जानूंगा, I will not मैं उसकी despise his बातों kingdom. को तुच्छ नहीं जानूंगा, I will not मैं despise उसके his things. घर को तुच्छ नहीं I will जानूंगा, not despise मैं his house. संतों के मिलने को तुच्छ नहीं I will जानूंगा। not despise the gathering of saints. मैं एक बलिदान का जीवन जीऊंगा, I will live a life of sacrifice. मैं अपने यीशु के लिए जीऊंगा। I will live for my Jesus. मैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चलाए चलूंगा, मैं वचन के द्वारा चलाए चलूंगा। I will not live by my senses. I will live by the word. हाँ, जब किसी को नहीं करना होता ना तो लोग बहुत रीजनिंग देते हैं। When someone doesn't want to do something, मैं they आपको give a lot of परमेश्वर reason. प्रभु मेरा गवाह है, God is जब my मैं witness. चर्च में पहली बार गया When I went to church the first time, तो किसी ने मुझे बताया, अभी 2-3 दिन हुए थे, it was just 2-3 days. दशवांश के बारे में। Somebody told me about मैंने tithing. पूछा दशवांश क्या होता है? I asked, what is तो tithing? उनका जो आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आप परमेश्वर को देते They said, whatever you earn, you give the हो। 10% to God. बस That's मैंने it. कोई संदेश नहीं सुना, I didn't hear any मेरे लिए sermon. ये काफी था This was enough for me. कि वचन में लिखा था, काफी था। It's in the word, it's enough for me. अब कई लोग कहते हैं ये पुराने नियम में है, ये नए नियम में नहीं है। Some people say it's in the Old Testament, it's not in the New Testament. मैंने एक व्यक्ति को कहा, I बहुत asked बढ़िया, someone, I said, very good. नए नियम की करो फिर, I said, giving। give like the new covenant then. अपने घर के कागज ले आओ। Bring your property papers. अरे नहीं करना तो मत करो, ये मत करो पुराना नियम नया नियम, ये था वो था। अगर उसका वचन कहता है तो हम उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, अपना लॉजिक बंद करके। If you don't want to do, don't do it. Don't bring logics that it was old covenant, new covenant. When we are the people that obey His word, we will do His word without using our logic. एक व्यक्ति था, वो चर्च नहीं जाता, वो कह रहा यीशु मसीह अगर पर्सनली मेरे कमरे में आके बोलेंगे चर्च जाना है तो ही मैं जाऊंगा। One person never used to go to church. He said, if Jesus comes in my room and tells me personally to go to church, I will go. मैंने कहा भाई खाना भी ऐसे ही खाता है कि यीशु जब तक मेरे कमरे में आके नहीं बोलेंगे खाना खा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। I said, do you eat food the same way until Jesus comes in my room and says, eat food, I don't eat? इसीलिए यीशु ने कहा कि हम उसकी क्या हैं, That's why Jesus said, we are. भेड़ें। आप जानते हो His sheep. भेड़ों की एक बात होती है, भेड़ें मूर्ख होती हैं। You know, sheep have a qualification. भेड़ें क्या होती They are हैं? foolish. मूर्ख होती हैं। Sheep are foolish.
तो भेड़ें जो मूर्ख होती है ना, So the sheep that are foolish, भेड़ श्याणी नहीं होती। भेड़ क्या होती है? the sheep are not smart. भेड़ केवल अपने चरवाहे के बीच चलती है। मैं The sheep जा just रहा है। follows the shepherd wherever the shepherd is going. उन्हें अपना दिमाग नहीं लगाना। They don't use their brain. उन्हें पता है मेरा चरवाहा आगे जा रहा है, मुझे इसको फॉलो करना They है। know my shepherd is leading me. I just have to follow him. जो बकरियां होती है ना, बकरियां The goats बड़ी श्याणी होती है। are very smart. पृथ्वी पे मूर्ख रहोगे तो स्वर्ग में बहुत बुद्धिमान माने जाओगे। If you will be foolish on the earth, you'll be very wise in the kingdom of heaven. जब मैं प्रभु में आया, मेरे ऑफिस में एक बंदा था, सोचो क्रिश्चियन फैमिली में बंदा। When I was in the Lord, there was a guy in my office from a Christian family. This guy was. पूरी उसने कोशिश कर दी कि मुझे प्रभु से कैसे दूर जाए। कह रहे तू पागल है, अभी इतनी जवानी में तो क्या कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, यीशु यीशु कर रहा है। He tried so hard to pull me back from the Lord. He said, "Are you gone crazy? Why are you following Jesus like this? You're so मूर्ख young." है। He said, "You're a fool." मैं तो स्टेज में बोल रहा हूँ, अभी मैं मूर्ख हूँ। I'm saying this on the stage. I'm a और fool. मैं ही नहीं, आप भी मूर्ख हो Not जो यहाँ just me. बैठे हो। You're also fools that you're here. क्योंकि वचन कहता है उसने मूर्खों को चुन लिया है Because the word says He has chosen ताकि fools जो ज्ञानी है उनको लज्जित कर दे। that He may put to shame those who are हालेलुया, wise. आमेन। लोग हमें मूर्खी तो कहते हैं। People call us fools. क्या कर रहे हो तुम? What are you doing? ये तो बात है। That's what. इस मूर्खता में जो मजा है वो कहीं बुद्धिमानी में नहीं। The joy in this foolishness can be found nowhere else in wisdom. आमेन। याद रखना, Always remember, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ होगा, people will criticize you, do all sort of things. मगर यीशु ने कहा But Jesus said, जब लोग तुम्हारी निंदा मेरे कारण करें when people criticize you because of me, तो तुम एक आनंद नहीं मनाना, बड़ा आनंद मनाना, greatly rejoice. क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। Because in the kingdom of heaven you have a great and mighty reward. हालेलुया, आमेन। यही मेरी प्रार्थना है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आप सबके लिए, जो मेरा आत्मिक परिवार हो, हम सब के लिए, कि हम इटर्निटी को अपने आगे रख के जीवन जिए। That's my prayer for you and your own family and my family, that we live with the perspective of eternity. जब आप अनंत को अपने सामने रखोगे ना, तो आप एंटेंगल नहीं होगे किसी चीज में। आपके पास बेस्ट, याद रखना, आप बेस्ट गाड़ी चलाओगे मगर आपका मोह उस गाड़ी में नहीं होगा। आप बेस्ट घर में भी रहोगे ना, तो भी आप उसमें बंधोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा मेरा धन यीशु मसीह है। When you'll keep eternity in front of you, you'll never be entangled in your blessings. You will have the best car, live in the best house, but you'll not be entangled with them, because you'll know your treasure is Jesus. नहीं तो आप आखिरी बेड में करें, हाय मेरी कोठी का क्या होगा। Otherwise you'll be wondering in your last breath, oh, what will happen to my big house? मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी कौन चलाएगा। I am going, who will drive my car? अरे वहां की कोठी है एक। You have a mansion there. हाँ, प्रभु ये नहीं कहता The कि Lord मैं doesn't तुम्हें say. फटे हाल भिखारी रखूंगा। The Lord doesn't say He'll keep you beggars. वो कहता है अगर मैं तेरा धन हो जाऊं, He says, if I become your अगर तेरी treasure, जीवन में पहली खोज मैं हूं, if I am your और first अगर तेरे pursuit, जीवन का पहला खोज मेरा राज्य है, And if your first तो pursuit is ये my kingdom, सारी चीजें जिसके पीछे अन्य जाति पागल हैं, मैं तेरे जीवन में जोड़ता रहूंगा अपने आप। Things shall be added in your life. then all these things that the Gentiles run after, I will add them to your life. वो तुम्हारे जीवन में अपने आप जुड़ जाएंगी, मैं जोड़ दूंगा उनको। Amen. And I want to tell you, this is one quality of a spiritual man and woman. और मैं आपको बता दूं, एक आत्मिक पुरुष, एक आत्मिक महिला की ये खूबी है That you will not be tied to earthly things. कि आप दुनिया की चीजों से बंधेंगे नहीं, Not be tied. आप बंधे हुए नहीं होंगे। Amen. मेरे पीछे बोलो, मेरा सच्चा धन यीशु मसीह है। Say this after me, my real treasure is Jesus. Amen. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand in our place. हालेलुया।
बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है, There's not much time left. फिर उस साइड मिलेंगे हम सब साथ में। Then we'll all meet on the other side together. मगर इस साइड जब तक हो, बेस्ट जियो प्रभु के लिए। But till you're on this side, live your best for the Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सारे अपने हाथों को उठाओ, गाऊंगा यीशु तेरा, उसकी आराधना करो, वो महान परमेश्वर है। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ।
पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। मैं हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। वो भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी हो यीशुआ सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे रोजा। और अपनी आवाजों में अब इस समय प्रार्थना करो। Come on, pray in your own voices now. अपने मुंह को खोलो इस समय, Open your mouth at this moment. उसको धन्यवाद दो जो मृत्यु उसने आपकी और मेरे लिए चखा। Thank Him for the death that He suffered for you and I. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से In spirit and truth. उस महान परमेश्वर की आराधना करो। Worship that great and almighty God. सुखा मामा मरागा देने मेरे ले ले ब्राला बाशाना मरागा देने में से कोठाला ब्राला बाबा। तू महान है यीशु, तू महान है, तेरे समान कोई नहीं। सुमाना मारा लगा देने में से रिगा दाना मारा लगा देने में से तेने मोरा लगा देने में से तेने मेरे लुब्रा बाबा बाबा से तो गोरिया ला बाबा बारे के देने मेरे के देने सुब्रा ला बाबा बारे के देने मेरे के तो कदीना मारा का देने में के ले ब्रा बाबा बाबा सखा ना मारा लगा देने मेरे लेके देने उसको बोलो यीशु मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। मूसिका दाना मारा लगा देने मेरे लेके सुखा मारा लगा देने में देके रे बरा लगा देने में देके सोमाना मारा लगा देने मूसिका दाना मारा लगा देने लाब्रा ला बाबा बाबा सखा ना मारा लगा देने में देके रे लेके तीना मारा लगा देने में सुमाना मारा लगा देने में से
पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा जी Tell him, Holy Spirit, मेरे अंदर वचन की वो भूख डाल दे। fill that hunger for your word in me. मेरी मदद कर इस पृथ्वी में मैं एक सच्चा जीवन जी सकूं। Help me that I can live an honest, truthful life on the earth. एक ऐसा जीवन जिससे मेरे यीशु को आदर और महिमा मिले। A life that will honor my Jesus. मेरी मदद कर पवित्र आत्मा की मैं अपने शरीरों को Help me, Lord, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊं। that with my body I will offer it as a living sacrifice for the Lord. मेरे मन के उद्देश्यों को प्रभु तू जानता है। Lord, you know the hidden motives of my heart. तो मेरे उद्देश्यों को, मेरे मन के छुपे हुए उद्देश्यों को शुद्ध कर प्रभु। Lord, purify those hidden motives and desires of my heart. खजाना मेरा, दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। कीमती खजाना मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। तेरा तू कीमती खजाना मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा।
तेरा, तूने सब दे दिया, कीमती खजाना तेरा, यीशुआ, 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 यीशुआ। उस परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर इस समय आप अपना ध्यान लगाओ। Put all your awareness on the power of God right now. वचन हमें बताता है कि सामर्थ परमेश्वर की है, किसी इंसान की नहीं।